morning students. How are you beta? I hope you all are happy and healthy at home and doing your work regularly and properly. Students, today we will discuss chapter 3 from our book Snapshot. Name of the chapter is Ranga's Marriage. Written by Masti Venkatesh Iyengar. He was born on 6 June 1861 and died on 6 June 1986. Students, death date and birth date is same. He died on his 95th birthday. He was a well-known writer in Kannada language. He has written 123 books in Kannada language, and in English language also he had written many books. Let's discuss the main characters of this chapter. Number 1, Shama. He is the narrator. He is an old man and has a great sense of humor. He is intelligent as well as a great manipulator. Manipulator कौन होता है? जो कि दूसरों को मैनिपुलेट करता है. मैनिपुलेट करना क्या होता है? दूसरों को अपनी बात मनवा लेना किसी भी तरीके से. Number 2 is Ranga. He is the son of village accountant, who was the first to be sent to Bangalore for higher education. He is very well mannered and educated young bachelor. Next one is Ratna. She is a girl of 11. She is niece of Rama Rao. She has lost her parents. She knows how to play veena and harmonium. Next, she also has a sweet voice. She got married with Ranga. Next is Shastriji. He is a village astrologer. He plays a vital role in arranging Ranga's marriage with Ratna. Students, let's take an introduction of the chapter. In this chapter, we find Ranga, the first one from the village who was sent to Bangalore to get higher education, and when he came back after getting higher education, when he returned, he had a different opinion about marriage. But after some time, we find that earlier he had the opinion that a person who wanted to get married choose a girl who is also healthy physically and mentally, like the person who wanted to get married. Means both should be healthy or mature and physically and mentally. But after some time, when Ranga came to know about Ratna, when Ranga came across Ratna, he changed his views about getting married. He wanted to get married with Ratna, and he takes help of Shama and Shastriji to get married with Ratna, and he got married. In this way, we can say that the perceptions that Ranga had about wedding, about marriage, changed after a few time. This story is a humorous story. In the very starting, the writer describes about the title and about his own village, and after he describes about Ranga's marriage. Let's discuss the chapter line by line. Ranga's marriage by Masti Venkatesh Iyengar. Ranga, the accountant's son, is one of the rare breed among the village folk who has been to the city to pursue his studies. Ranga, जो कि लेखाकार का बेटा है, वह रेयर मीन्स क्या है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और हार्डली फाउंड. ब्रीड मीन्स क्या होता है? स्पेसिस, प्रजाति. जो जाति है, मुश्किल से पाई जाने वाली जाति में से एक है, जो कि गांव के लोगों के बीच में, फोक मीन्स क्या है? पीपल, जो कि सिटी में जाकर के आया है. क्या करने गया था? टू परस्यू. परस्यू मीन्स ऐसे होता है कंटिन्यू, यहाँ पर कहेंगे कंप्लीट, अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए. When he returns to his village from the city Bangalore, जब वह वापिस आया, लौटता है अपने गांव बेंगलोर शहर से,
द क्राउड्स मिल अराउंड हिज हाउस। मिल अराउंड मीन्स क्या है? मंडराती है, उसके घर के चारों तरफ आ जाती है जो भीड़ है वो, लोगों की भीड़ लग जाती है उसके घर के चारों तरफ। टू सी वेदर ही हैज चेंज और नॉट, ये देखने के लिए वह बदला कि नहीं बदला। हिज आइडियाज अबाउट मैरिज आर नाउ क्वाइट डिफरेंट और आर दे, उसके जो आइडियाज जो थॉट्स थे वो डिफरेंट थे शादी के बारे में या नहीं। When you see this title, some of you may ask, जब आप इस टाइटल को देखते हैं तो आप में से कुछ है वो पूछ सकते हैं रंगाज मैरिज, क्वेश्चन मार्क लगाया है राइटर ने कि रंगा की शादी। वाई नोट रंगनाथ विवाह, कि रंगनाथ विवाह टाइटल का नाम क्यों नहीं रखा गया और रंगनाथ विजय या रंगनाथ विजय रखा गया हो। वेल यस, ठीक है, हाँ। आई नो आई कुड हैव यूज सम अदर माउथ फीलिंग वन लाइक जगन्नाथ विजय, मैं जानता हूँ कि मैं प्रयोग कर सकता था कोई भी मुंह भरने वाला एक अच्छा सा टाइटल जैसे कि जगन्नाथ विजय या गिरिजा कल्याण। बट देन दिस इज नॉट अबाउट जगन्नाथ विक्ट्री और गिरिजाज वेडिंग, परंतु ये तो तब ना तो जगन्नाथ विक्ट्री के बारे में है ना ही गिरिजा की शादी के बारे में है। इट्स अबाउट आवर ऑन रंगाज मैरिज, यह तो हमारा रंगा है उसकी शादी के बारे में है। एंड हैंस नो फैंसी टाइटल, फैंसी मीन्स क्या है यहाँ पर? इमेजिनरी, और इसीलिए कोई भी इमेजिनरी टाइटल नहीं चलेगा। होसाली इज आर विलेज, होसाली जो कि हमारा गांव है। यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ इट, आपने जरूर ही इसके बारे में सुना होगा। नो, क्वेश्चन मार्क लगाया फिर से, नहीं सुना है। व्हाट ए पीटी, कितने शोक की बात है, कितनी दया की बात है। बट इट इज नॉट योर फॉल्ट, परंतु यह तुम्हारी गलती नहीं है। देर इज नो मेंशन ऑफ इट इन एनी ज्योग्राफी बुक, कि इस जगह का जो हसाले विलेज है उसका कहीं पर भी डिस्क्रिप्शन नहीं है। मेंशन मीन्स क्या है? डिस्क्रिप्शन, कहीं पर भी डिस्क्रिप्शन नहीं है, वर्णन नहीं है भूगोल की पुस्तक में। दो साहिब्स इन इंग्लैंड, की जो इंग्लैंड के रहने वाले हैं जो अंग्रेजी में लिखते हैं, राइटिंग इन इंग्लिश में लिखते हैं, प्रोबेबली डू नॉट नो दैट सच ए प्लेस एग्जिस्ट, संभावना ये है परहैप्स वो नहीं जानते हैं कि इस नाम की कोई जगह अस्तित्व में है। एग्जिस्ट मीन्स क्या है? बीइंग प्रेजेंट, उपस्थित है, अस्तित्व में है। एंड सो मेक नो मेंशन ऑफ इट, और शायद इसीलिए उन्होंने इसका कोई वर्णन नहीं किया है। और ओन पीपल टू फॉरगेट अबाउट इट, हमारे खुद के लोग हैं वो भी इसके बारे में भूल जाते हैं। ओन पीपल मीन्स क्या है? हमारी जो कंट्री के वो भी। यू नो हाउ इट इज, आप जानते हैं कैसे है। दे आर लाइक ए फ्लॉक ऑफ शिप, कि वो लोग, फ्लॉक मीन्स क्या है? हार्ड, कि वो क्या है? भेड़ के झुंड की तरह से भेड़ चाल चलते हैं। वन शिप वॉक्स इनटू ए पिट, पिट मीन्स क्या है? डिच, एक जो भेड़ है वो जाती है किसमें? एक गड्ढे में। द रेस्ट ब्लाइंडली फॉलो इट, तो जो बचे हुए हैं वो सारी भेड़ें इसके पीछे चली जाती हैं। When both the tribes in England and our own geographers, जब दोनों जो लोग अंग्रेज हैं जो इंग्लिश लिखने वाले हैं वो और हमारे खुद के जो जोग्राफर हैं वो हैव नॉट रेफर टू इट, कि उन्होंने अब तक इसका कोई वर्णन नहीं किया है। यू कैन नॉट एक्सपेक्ट द पुअर कार्टोग्राफर टू रिमेंबर टू पुट इट ऑन द मैप, तो आप उम्मीद नहीं कर सकते। एक्सपेक्ट मीन्स क्या है? होप, आप नहीं सोच सकते, आप उम्मीद नहीं कर सकते कि जो कार्टोग्राफर है, कार्टोग्राफर कौन होता है? पर्सन हु मेक्स मैप्स, वो याद रखे इसको मैप में डालने के लिए। कैन यू, क्या आप ऐसा सोच सकते हैं? एंड सो देयर इज नॉट इवन द शेडो इन आवर विलेज ऑन एनी मैप, और इसीलिए कोई भी शेडो भी नहीं है हमारे विलेज की मैप के ऊपर। मीन्स कोई भी चिन्ह, किसी तरह की छाया, कुछ भी हमारे गांव का मैप में कहीं पर भी नहीं मिलता है। सॉरी, I started somewhere and then went off in another direction. माफ करना, मैंने स्टार्ट कहीं और से किया और मैं किसी दूसरी दिशा में चला गया। If the state of Mysore is to भारतवर्ष, what the, यदि जो मैसूर स्टेट है जिसको कि भारतवर्ष के लिए माना जाए, what the स्वीट क्रीगा दाबू, कि यदि हम मैसूर को भारतवर्ष के लिए माने तो जो स्वीट क्रीगा दाबू है, क्रीगा दाबू क्या स्वीट है? साउथ इंडियन डिश, साउथ इंडियन फ्राइड डिश फिल्ड विद शुगर एंड कोकोनट।
साउथ इंडिया में तलकर बनाई जाने वाली मिठाई जो कि फेस्टिवल्स के ऊपर बनाई जाती है, जिसमें शुगर और कोकोनट भरा जाता है, वो मिठाई है क्रिका दाबू। तो जो क्रिका दाबू है इज टू ए फेस्टिव मील, कि वो एक फेस्टिव मील है, उत्सव का खाना है। देन होसली इज टू मैसूर स्टेट, तो उसी प्रकार से जो होसली है वो मैसूर स्टेट के लिए है। व्हाट द फीलिंग इज टू द क्रिका दाबू, जैसे कि कोकोनट और शुगर है वो जरूरी है क्रिका दाबू को फिल करने के लिए, उसी तरह होशाली भी जरूरी है मैसूर स्टेट के लिए। बट हैव सेड इज, जो कि अब तक कहा गया है, एब्सोल्युटली ट्रू, बिलीव मी, एब्सोल्युटली मीन्स क्या, कंप्लीटली, पूरी तरह से सच्चे है, मेरा विश्वास करे। आई विल नॉट ऑब्जेक्ट टू योर क्वेश्चनिंग इट, मैं ऑब्जेक्ट नहीं करूंगा, माइंड नहीं करूंगा। ऑब्जेक्ट मीन्स क्या है, माइंड, मैं माइंड नहीं करूंगा तुम्हारी क्वेश्चनिंग को, तुम्हारे प्रश्नों को। बट आई विल स्टिक टू माई ओपिनियन, स्टिक मीन्स क्या है, फिक्स्ड, परंतु मैं फिक्स रहूंगा मेरे विचारों के ऊपर, उनसे स्टिक रहूंगा, उनसे चिपका रहूंगा, अडिग रहूंगा। आई एम नॉट ओनली वन हु स्पीक्स ग्लोइंगली ऑफ होसली, स्पीक्स ग्लोइंगली मीन्स क्या है, प्रेज वेरी लार्जली, कि बड़े तौर पर तारीफ करता हूँ। मैं केवल अकेला नहीं हूँ जो कि बड़ी अच्छे से तारीफ करता हूँ होसली की। वी हैव ए डॉक्टर इन आवर प्लेस, कि हमारे गांव में, हमारी जगह पर एक डॉक्टर भी है। हिज नेम इज गंडा भट्टा, उसका नाम गंडा भट्ट है। ही एग्रीज विद मी, वह भी मेरी बात से सहमत है। ही हैज़ बीन टू क्वाइट ए फ्यू प्लेसेस, वह कुछ जगह की यात्रा कर चुका है। नो नॉट इंग्लैंड, नहीं, उसने इंग्लैंड की यात्रा नहीं की है, वह इंग्लैंड नहीं गया कभी भी। इफ एनीवन आस्क्स हिम वेदर ही हैज़ बीन देयर ही सेज नो अनन्या, यदि कोई उससे पूछता है कि यदि वह इंग्लैंड गया है तो वह कहता है नो अनन्या। अनन्या क्या है, कन्नड़ वर्ड है जो कि बड़ों के लिए रेस्पेक्ट शोइंग के लिए यूज किया जाता है, रेस्पेक्ट का मार्क है, तो वो नो अनन्या कह करके उत्तर देता है। आई हैव लेफ्ट दैट टू यू, कि वह जगह मैंने तुम्हारे लिए छोड़ दी है। रनिंग अराउंड लाइक ए फ्लिया पेस्टर्ड डॉग, फ्लिया क्या होता है, ए स्मॉल इंसेक्ट विच सक्स ब्लड, एक छोटा सा परजीवी कह सकते हैं हम, जो कि ब्लड चूसता है। पेस्टर्ड, पेस्टर्ड मीन्स क्या है, टॉर्चर, प्रताड़ित किया गया, पीछों से प्रताड़ित किए गए डॉग की तरह से इधर उधर घूमना। इज नॉट फॉर मी, यह मेरा काम नहीं है। आई हैव सीन ए फ्यू प्लेसेस इन माई टाइम, दो, यद्यपि मेरे समय में मैंने कुछ जगह देखी हैं। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट ही हैज सीन मैनी, और सच्चाई ये है कि उसने बहुत सारी जगह देखी हैं। वी हैव सम मैंगो ट्रीज इन आवर विलेज, हमारे गांव में कुछ मैंगो ट्रीज हैं। कम विजिटर्स, आओ हमारे यहाँ की यात्रा करो। एंड आई विल गिव यू ए रा मैंगो फ्रॉम वन ऑफ देम, और मैं तुम्हें एक रा मैंगो, रा मीन्स कहता है नॉट राइप, कच्चा, पका हुआ ना हो, कच्चा आम दूंगा, उनमें से एक। डू नॉट ईट इट, इसको खाइएगा मत। जस्ट टेक ए बाइट, सिर्फ आप उसको एक बाइट करें। द श्योरनेस इज श्योर टू गो स्ट्रेट टू योर ब्रह्मरंध्र, जो श्योरनेस है, जो खट्टापन है, श्योरनेस मीन्स क्या है, श्योर टेस्ट, खट्टा जो स्वाद है वो निश्चित तौर पर, स्टेट मीन्स क्या, डायरेक्ट, सीधी, कहाँ पर जाएगी, टू योर ब्रह्मरंध्र। ब्रह्मरंध्र क्या होता है, सॉफ्ट पार्ट ऑफ स्कल इन ए चाइल्ड, बच्चे के जब सर में देखते हैं, छोटा बच्चा होता है तो बीच में एक सॉफ्ट जगह होती है, उसको बोला गया है ब्रह्मरंध्र। इडियोटिक यूज किया है यहाँ पर, तो सीधी जो श्योरनेस है वो तुम्हारे ब्रह्मरंध्र में जाएगी, मीन्स बहुत अधिक खट्टे वो मैंगो होते हैं। आई वंस टुक वन सच फ्रूट होम, और एक इसी तरह का फल एक बार मैं घर लेकर के आया। एंड ए चटनी वॉज मेड आउट ऑफ इट, और इसकी चटनी बनाई गई। ऑल ऑफ अस एट इट, हम सभी ने चटनी खाई। द कफ वी सफर्ड फ्रॉम आफ्टर दैट, और जो खांसी हमें इसके बाद हुई, इट वॉज वेन आई वेंट फॉर द कफ मेडिसिन, और यह उसी समय की बात है जब मैं इस खांसी की दवा लेने गया। दैट द डॉक्टर टोल्ड मी अबाउट द स्पेशल क्वालिटी ऑफ द फ्रूट, कि उस समय मुझे डॉक्टर ने इस फ्रूट की स्पेशल जो क्वालिटी थी, जो करेक्टरिस्टिक थी, जो फीचर थी, वो मुझे बताई। जस्ट एज मैंगो इज स्पेशल, जैसे कि जो मैंगो है वो स्पेशल है यहाँ का, सो इज एवरीथिंग एल्स अराउंड आवर विलेज, इसी तरह से हमारे गांव के आसपास की हर चीज इतनी फेमस है। वी हैव ए क्रीपर ग्रोइंग, क्रीपर मीन्स क्या होता है,
क्रीपर प्लांट कह सकते हैं, लता, बेल। ग्रोइंग इन द एवर सो फाइन वाटर, जो कि बड़ी होती है, उगती है अच्छे पानी में। ऑफ द विलेज पॉन्ड, पॉन्ड मीन्स क्या, तालाब, जो गांव के तालाब में उगती है। इट्स फ्लावर्स आर ए फीस्ट टू बीहोल्ड, फीस्ट मीन्स क्या है, डिलाइट कहेंगे यहाँ पर, वैसे क्या होता है, पार्टी। इट्स फ्लावर्स आर ए फीस्ट, फीस्ट में क्या है, डिलाइट, खुशी है। टू बीहोल्ड, बीहोल्ड मीन्स क्या है, सी, देखने में, इसके फूल देखने में एक क्या है, एक खुशी प्रदान करते हैं। गेट 2 लीव्स फ्रॉम द क्रीपर, आप इस बेल से, इस क्रीपर से 2 फूल पत्ते ले लीजिए। When you go to the pond for your bath, जब तुम तालाब पर जाओ बात करने के लिए तभी। And you will not have to worry about not having leaves on which to serve the afternoon meal, और तुम्हें अब चिंता की जरूरत नहीं होगी कि तुम्हारे पास लीव्स नहीं है दोपहर का खाना परोसने के लिए। You will say I am rambling, rambling means क्या है, beating about the bush, इधर उधर की हाँकना, इधर उधर की बातें करना। अब आप कहेंगे कि मैं इधर उधर की बातें कर रहा हूँ, मैं अपने पॉइंट से भटक रहा हूँ। इट इज़ ऑलवेज लाइक दैट व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ आवर विलेज कम्स अप, और ये हमेशा की तरह से जब भी हमारे गांव की बात आती है तो ऐसा ही होता है। बट इनफ, परंतु ये पर्याप्त हो गया है। इफ एनीवन ऑफ यू वुड लाइक टू विजिट अस, यदि तुम में से कोई भी हमारे यहाँ पर यात्रा करना चाहता है, ड्रॉप मी अ लाइन, तो मुझे एक लेटर लिख देना। I will let you know where होसली is, मैं तुम्हें बताऊंगा कि होसली कहाँ पर है। And what things are you like here, और कौन कौन सी चीज़ें तुम्हें यहाँ पर अच्छी लगेंगी। The best way of getting to know a place is to visit it, don't you agree? एक अच्छा तरीका किसी जगह के बारे में जानने का होता है कि आप उस जगह की यात्रा करें, विजिट करें। क्या आप इस बात से सहमत नहीं है? What I am going to tell you is something that happened 10 years ago. अब मैं जो तुम्हें बताने वाला हूँ वो 10 साल पहले की घटना है। 10 साल पहले जो घटित हुआ वो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। We didn't have many people who knew English then. उस समय बहुत सारे लोग ऐसे नहीं थे हमारे आसपास जो कि इंग्लिश जानते हों। Our village accountant was the first one who had enough courage to send his son to Bangalore to study. जो हमारे गांव का लेखाकार था वह पहला इंसान था जिसने पर्याप्त साहस दिखाया, डेयर किया अपने बेटे को बेंगलोर भेजने का पढ़ाई के लिए। इट इज़ डिफरेंट नाउ, अब अलग बात है। देर आर मैनी हु नो इंग्लिश, अब तो बहुत सारे हैं जो इंग्लिश जानते हैं। ड्यूरिंग द हॉलीडेज यू कम अक्रॉस दैम ऑन एवरी स्ट्रीट, और छुट्टियों के दौरान तो आपको हर गली में ऐसे लोग मिल जाएंगे। दैम कौन है? जो इंग्लिश जानने वाले हैं उनके बारे में बोला है। टॉकिंग इन इंग्लिश, इंग्लिश में बात करते हुए। दोज डेज वी डिड नॉट स्पीक इन इंग्लिश, उन दिनों हम अंग्रेजी में नहीं बोलते थे। नोट डिड वी ब्रिंग इन इंग्लिश वर्ड्स वाइल टॉकिंग, और ना ही हम अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग करते थे जब बातचीत करते थे। वाइल टॉकिंग इन कन्नड़, जब कन्नड़ लैंग्वेज में बातचीत करते थे तो भी अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग हम नहीं करते थे। वट हैज़ हैपेंड इज डिस्ग्रेसफुल, बिलीव मी, जो घटित हुआ वो बड़ा डिस्ग्रेसफुल था, बड़ा डिसरिस्पेक्टिव था, मेरा विश्वास करे। द अदर डे आई वॉज इन रामा राव's हाउस, एक दिन, दूसरे दिन मैं रामा राव के घर में था। When they bought a bundle of firewood, जब उन्होंने खरीदा एक बंडल जलाने की लकड़ियों का। रामा राव सन केम आउट टू पे फॉर इट, रामा राव का बेटा बाहर आया इसका पैसा चुकाने के लिए। He asked the woman, how much should I give you? उसने जो औरत जो फायरवुड बेच रही थी उससे पूछा कि कितने पैसे देने होंगे। 4 पैसे, और उस लेडी ने कहा 4 पैसे। She said, उसने कहा। The boy told her he did not have any change. अब लड़के ने उससे कहा कि उसके पास कोई चेंज नहीं है। चेंज मीन्स क्या है? कॉइन्स, सिक्के नहीं है, खुले पैसे नहीं है। एंड आस्क्ड हर टू कम द नेक्स्ट मॉर्निंग, और उसको कहा कि अगली सुबह आना। द पुअर वुमेन डिड नॉट अंडरस्टैंड द इंग्लिश वर्ड चेंज, और बेचारी औरत नहीं समझ पाई अंग्रेजी शब्द चेंज को। एंड वेंट अवे मटरिंग टू हर सेल्फ, और अपने आप में ही बुड़बुड़ाती हुई, मटरिंग मीन्स क्या? मरमरिंग, धीरे धीरे बड़बड़ करती हुई चली गई। आई टू डिड नॉट नो, मैं भी नहीं जानता था। क्या नहीं जानता था? चेंज वर्ड का मीनिंग।
लेटर व्हेन आई वेंट टू रंगाज हाउस, बाद में जब मैं रंगा के घर गया, एंड आस्क्ड हिम, और उससे पूछा, आई अंडरस्टूड व्हाट इट मीन्ट, मैं समझ गया कि इसका क्या अर्थ होता है। किसका अर्थ समझा? चेंज का। दिस प्राइसलेस कमोडिटी, कमोडिटी मीन्स क्या था? थिंग्स, ये बेशकीमती अमूल्य जो थिंग्स थी, द इंग्लिश लैंग्वेज, अंग्रेजी भाषा, was not so widespread, इतनी अधिक नहीं फैली थी, in our village a decade ago, एक दशक पहले तक हमारे गांव में इतने इस भाषा का प्रयोग नहीं था, इतनी नहीं फैली हुई थी। That was why रंगा's homecoming was a great event, इसीलिए जो रंगा की होमकमिंग थी, घर वापसी थी, वो एक बड़ी इवेंट थी। People rushed to his doorstep announcing, लोग हैं वो दौड़े उसके घर की तरफ घोषणा करते हुए, अनाउंसिंग मीन्स क्या? डिक्लेयरिंग, घोषणा करते हुए, द अकाउंटेंट सन हैज कम, कि लेखाकार का बेटा आ चुका है। द बॉय हु हैड गॉन टू बेंगलोर फॉर हिज स्टडीज इज हियर, इट सीम्स, जो लड़का गया था बेंगलोर अपनी पढ़ाई के लिए वो यहाँ पर है, ऐसा लगता है। एंड कम रंगा इज हियर, और आओ रंगा यहाँ पर है। लेट्स गो एंड हैव ए लुक, आओ चले और उसको एक बार देखें। अट्रैक्टेड बाय द क्राउड, आकर्षित किया गया भीड़ के द्वारा। आई टू वेंट एंड स्टूड इन द कोर्टयार्ड एंड आस्क्ड, मैं भी चला गया, कहाँ पर? रंगा के घर पर, और कोर्टयार्ड में खड़ा हो गया। वाई हैव ऑल दीज पीपल कम, ये सब लोग क्यों आए हैं? देर इज नो परफॉर्मिंग मंकी हेयर, यहाँ पर कोई परफॉर्म करने वाला, कोई ट्रिक करने वाला बंदर नहीं है। ए बॉय ए फेलो विदाउट एनी ब्रेन सेड, एक लड़के, एक साथी ने बिना दिमाग की बात कही। लाउड इनफ फॉर एवरीवन टू हियर, और इतनी ऊंची आवाज में कही कि हर कोई आसानी से सुन सकता था। वट आर यू डूइंग हियर देन, तो फिर तब तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर? ए यंगस्टर इमेच्योर एंड विदाउट एनी मैनर्स, एक छोटे जो कि मैच्योर नहीं था, समझदार नहीं था, उसने बिना किसी तौर तरीके की ये भाषा बोली। Thinking that all these things were now the past, I kept quiet, ये सोचते कि ये सब चीज़ें अब पास्ट की हो गई हैं, बीते हुए समय की हैं, मैं चुप रहा। Seeing so many people there, रंगा came out with a smile on his face, इतने सारे लोगों को वहाँ देख करके रंगा बाहर आया एक मुस्कुराहट के साथ, हंसते हुए चेहरे के साथ। Had we all gone inside, क्या हम सभी अंदर जा चुके हैं? The place would have turned into what people call the black hole of Kolkata, और जो प्लेस था वो ऐसे बन गया था जैसे कि कलकत्ता का जो ब्लैक होल, ब्लैक होल मीन्स क्या है? जो जेल है उसको बोला गया है, उसकी तरह से भीड़ भाड़ वाली जगह ये हो गई थी। थैंक गॉड इट डिडंट, भगवान का धन्यवाद है कि ये नहीं बना। क्या नहीं बना? ब्लैक होल नहीं बना, जेल की दृश्य नहीं बना। Everyone was surprised to see that Ranga was the same as he had been 6 months ago. हर कोई सरप्राइज था, अमेज्ड था यह देख करके कि रंगा बिल्कुल भी नहीं बदला था, वह वैसा ही था जैसे 6 महीने पहले था। When he had first left our village, जब वह पहली बार गांव को छोड़ करके गया था। An old lady who was near him ran her hand over his chest. एक बूढ़ी औरत, बुजुर्ग और जो कि उसके पास में खड़ी थी, किसके? रंगा के पास में, उसने अपना हाथ उसकी चेस्ट के ऊपर से घुमाया, छाती पर घुमाया। लुक्ड इनटू हिज आईज एंड सेड, उसकी आंखों में देखा और कहा, द जनेवरा, जनेवरा मीन्स क्या? जनेव, जो सेक्रेड थ्रेड होता है वो, इज स्टिल देयर, कि इसने अभी भी जनेव पहना हुआ है। ही हैज नॉट लॉस्ट हिज कास्ट, कि उसने अपनी जाति नहीं गंवाई है। शी वेंट अवे सून आफ्टर दैट, और ऐसा कहकर के वो वहां से चली गई। रंगा लाफ्ड, रंगा हंसा। Once they realized that Ranga still had the same hands, जब उन सभी को एक बार आभास हो गया, सभी जान गए, सबको समझ में आ गया कि रंगा वैसा ही है जैसा पहले था। रंगा के वही हाथ हैं, लेग्स, आईज एंड नोज, वही हाथ, पैर, आंखें और नाक है। द क्राउड मेल्टेड अवे, मेल्टेड मीन्स क्या? स्प्रेडेड, भीड़ बिखर गई, भीड़ वहां से चली गई। लाइक ए लंप ऑफ शुगर इन ए चाइल्ड्स माउथ, जैसे कि कोई जो शुगर की डली है वो बच्चे के मुंह में पिघलती है, भीड़ वहां से इस तरह से छट गई। आई कॉन्टिन्यू टू स्टैंड देयर, मैं वहीं पर खड़ा रहा। आफ्टर एवरीवन हैड गोन आई आस्क्ड, जब हर कोई वहां से जा चुका था मैंने पूछा, हाउ आर यू रंगप्पा,
रंगप्पा तुम कैसे हो? इज एवरीथिंग वेल विद यू? क्या सब कुछ ठीक ठाक है? इट वॉज ओनली देन दैट रंगा नोटिस्ड मी, और यह वह समय था जिस टाइम रंगा ने मेरे को नोटिस किया, ध्यान दिया मेरी तरफ। ही केम नियर मी एंड डिड नॉट नमस्कार रेस्पेक्टफुली सेइंग, डिड ए नमस्कार रेस्पेक्टफुली, वह मेरे पास आया और उसने बड़े रिस्पेक्ट से नमस्कार किया, सम्मान के साथ नमस्कार किया, सेइंग आई एम ऑल राइट विद योर ब्लेसिंग्स, मैं बिल्कुल ठीक हूँ तुम्हारे आशीर्वाद से। आई मस्ट ड्रॉ योर अटेंशन टू दिस एस्पेक्ट ऑफ रंगाज कैरेक्टर, मैं तुम्हारा ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ रंगा के कैरेक्टर के इस तथ्य की तरफ, इस एस्पेक्ट की तरफ। ही न्यू व्हेन इट वुड बी टू हिज एडवांटेज टू टॉक टू समवन, वह जानता था कि कब उसे जो उसकी एडवांटेज है, चारित्रिक गुण है बातचीत करने के, किसी के साथ शो करने हैं। एंड राइटली असेस्ड पीपल्स वर्थ, असेस्ड मीन्स क्या? मापन कर लेना, अंकन कर लेना, और वह लोगों की जो वैल्यू है उसको सही तरीके से मापन करता था। एज फॉर हिज नमस्कार टू मी, जैसे कि उसने मुझे नमस्कार किया मेरे लिए, ही डिड नॉट डू इट लाइक एनी प्रेजेंट डे बॉय, वह जो आज के वर्तमान के बॉय हैं उनकी तरह से नहीं किया। विद हिज हेड अप टुवर्ड्स द सन, कि जैसे कि सीधे सूरज की तरफ मुंह करके बोलते हैं या मुंह ऊपर करके बोलते हैं नमस्कार, उस तरह से नहीं किया। स्टैंडिंग स्टिफ लाइक ए पोल विदाउट जॉइंट्स, जैसे ऐसे स्टिक खड़े हो जाते हैं एक पोल की तरह से, बिना किसी जॉइंट के। जर्किंग हिज बॉडी, अपनी बॉडी को झटकते हुए। एज इफ इट वॉज आइदर ए वांड और ए वॉकिंग स्टिक, जैसे कि ये कोई वांड या कहे कि वॉकिंग स्टिक, सहारा लेकर के चलने वाली लकड़ी हो। मीन्स क्या है कि रंगा की तारीफ कर रहा है यहाँ पर नरेटर, राइटर हमें बता रहा है कि रंगा का जो नमस्कार करने का तरीका था वो आज के जो बॉयज हैं उनसे बिल्कुल डिफरेंट था। उसने बिल्कुल सीधे खड़े होकर के या अकड़ में नमस्ते नहीं किया था। नोर डिड ही मेयरली फोल्ड हिज हैंड्स, ना केवल उसने अपने हाथों को जोड़ा था। ही बेंट लो टू टच माई फीट, वह नीचे झुक गया था मेरे पैरों को छूने के लिए। मे यू गेट मैरिड सून, आई सेड ब्लेसिंग हिम, तुम्हारी जल्दी शादी हो, मैंने कहा उसको आशीर्वाद देते हुए। आफ्टर एक्सचेंजिंग ए फ्यू प्लेजेंट्री आई फेल्ट, प्लेजेंट्री मीन्स क्या? खुशनुमा स्थिति को, कुछ सुखद पूर्वक शब्दों को, प्लेजेंस गिविंग शब्दों को, प्लेजर गिविंग शब्दों को करते बोलते हुए मैं वहां से चल पड़ा। दैट आफ्टरनून व्हेन आई वॉज रेस्टिंग रंगा केम टू माई हाउस, उस दोपहर जब मैं आराम कर रहा था रंगा मेरे घर आया। विद ए कपल ऑफ ऑरेंजेस इन हिज हैंड, उसके हाथ में कुछ ऑरेंज थे। ए जनरस कंसिडरेट फेलो, एक बहुत ही जनरस, काइंड, कंसिडरेट मीन्स क्या? सोचने वाला, समझदार, अंडरस्टैंडिंग व्यक्ति। इट वुड बी ए फाइन थिंग टू हैव हिम मैरी, सेटल डाउन एंड बी ए ऑफ सर्विस टू सोसाइटी आई थॉट, अब मैंने सोचा कि अब अच्छा है कि उसकी शादी करवा दी जाए, उसे सोसाइटी के लिए, समाज की सेवा के लिए तैयार किया जाए। फॉर ए वाइल वी टॉक्ड अबाउट दिस एंड दैट, कुछ समय के लिए हमने इधर उधर की बातें की। देन आई केम टू द पॉइंट, फिर मैं अपनी बात पर आया। रंगप्पा व्हेन डू यू प्लान टू गेट मैरिड, रंगप्पा तुम क्या सोच रहे हो, शादी के बारे में क्या प्लान है, कब करोगे? आई एम नॉट गोइंग टू गेट मैरिड नाउ, ही सेड, उसने कहा अभी मैं शादी नहीं करने वाला हूँ। वाई नॉट, क्यों नहीं? आई नीड टू फाइंड ए राइट गर्ल, मुझे ज़रूरत है एक उचित लड़की ढूंढने की। आई नो एन ऑफिसर हु गोट मैरिड ओनली 6 months एगो, मैं एक अफसर को जानता हूँ जिसकी शादी सिर्फ 6 महीने पहले हुई थी। ही इज अबाउट 30 एंड हिज वाइफ इज 25 आई एम टोल्ड, वह लगभग 30 साल के हैं और उसकी पत्नी 25 साल की है, ऐसा मुझे बताया गया। दे विल बी एबल टू टॉक लविंगली टू ईच अदर, अब वो एबल हैं, एक दूसरे को प्यार से समझ सकते हैं, बातें कर सकते हैं। लेट्स से आई मैरिड ए वेरी यंग गर्ल, अब जैसे कि कहें कि मैं शादी की एक बहुत छोटी उम्र की लड़की से। सी मे टेक माई वर्ड्स स्पोकन इन लव एज वर्ड्स स्पोकन इन एंगर, यदि ऐसा होता है तो मेरे प्यार में कही गई शब्दों को ले सकती है गुस्से के शब्दों में, सोच सकती है। रिसेंटली ए ट्रूप इन बेंगलोर स्टेज्ड द प्ले शकुंतला, और हाल ही में, रिसेंटली मीन्स क्या? प्रेजेंटली, हाल ही में
एक ट्रुप मीन्स क्या था, एक ग्रुप ऑफ एक्टर्स, दल। जो एक्टर्स थे उन्होंने बेंगलोर में स्टेज के ऊपर एक प्ले दिखाया था जिसका नाम शकुंतला था। देर इज नो क्वेश्चन ऑफ दुष्यंत फॉलिंग इन लव विद शकुंतला। अब दुष्यंत के लिए कोई भी क्वेश्चन नहीं था कि वह शकुंतला से प्यार कैसे करने लगा, इफ शी वर यंग, यदि वह छोटी उम्र की होती। लाइक द प्रेजेंट डे ब्राइड्स इज देयर, जैसे कि वर्तमान में जो दुल्हन होती है, क्या यहाँ पर ऐसा ही है। वट वुड हैव हैपन्ड टू कालिदास प्ले, तो जो कालिदास का प्ले है शकुंतला, उसके में क्या हुआ होता। इफ वन गेट्स मैरिड, यदि कोई शादी करता है, इट शुड बी टू ए गर्ल हु इज मैच्योर, तो शादी करने के लिए लड़की मैच्योर होनी चाहिए, सही उम्र की होनी चाहिए, समझदार होनी चाहिए। अदरवाइज वन शुड रिमेन ए बैचलर, अन्यथा व्यक्ति को कंवारा ही रहना चाहिए, बैचलर ही रहना चाहिए। दैट्स वाई आई एम नॉट मैरिंग नाउ, और यही कारण है कि अभी मैं शादी नहीं करूंगा। इज देयर एनी अदर रीजन, क्या कोई दूसरा कारण है। ये कौन बोल रहा है, नरेटर। ए मैन शुड मैरी ए गर्ल ही एडमायर्स, एक व्यक्ति को ऐसी लड़की से शादी करनी चाहिए जिसकी वह प्रेज करता है, तारीफ करता है। वट वी हैव नाउ आर अरेंज्ड मैरिजेस, कि अभी जो हमारे बीच में है, हमारी सोसाइटी में है, वो क्या होता है, अरेंज मैरिज होती है। हाउ कैन वन एडमायर ए गर्ल विद मिल्क स्टेन्स ऑन वन साइड ऑफ हर फेस, किस तरह से एक व्यक्ति एक ऐसी लड़की की तारीफ कर सकता है जिसके फेस के एक साइड में मिल्क स्टेन्स है, दूध के धब्बे हैं, एंड वेटनेस ऑन द अदर, और दूसरी तरफ क्या है, वेटनेस है, गीलापन है। और सो यंग दैट शी डज नॉट इवन नो हाउ टू बाइट हर फिंगर्स, और या वह इतनी छोटी उम्र की है कि वो ये भी नहीं जानती कि अपनी उंगलियों को कैसे बाइट करे, कैसे काटे। वन ए नीम फ्रूट, और जो एक तो क्या है, नीम का पेड़ है, दूसरा क्या है, बिटर गोर्ड है, करेला है। एग्जैक्टली रंगा सेड लाफिंग, बिल्कुल सही, रंगा ने हंसते हुए कहा। आई वॉज डिस्ट्रेस्ड दैट द बॉय हु आई थॉट वुड मेक ए गुड हस्बैंड, मैं बड़ा उदास हो गया था, मैंने जिस लड़के को सोचा था कि एक अच्छा हस्बैंड साबित होगा, हैड डिसाइडेड टू रिमेन ए बैचलर, और उस लड़के ने क्या डिसाइड किया, कंवारा रहने का। आफ्टर चैटिंग ए लिटल लॉन्गर, चैटिंग मीन्स क्या, टॉकिंग, कुछ थोड़ी देर बात करने के बाद रंगा लेफ्ट, रंगा वहां से चला गया। आई मेड अप माई माइंड राइट देन, और उसी वक्त मैंने सोचा दैट आई वुड गेट हिम मैरिड, कि मैं उसकी शादी करवा कर ही रहूंगा। रामाराव नीस ए प्रेटी गर्ल ऑफ 11, रामाराव की भतीजी जो कि एक सुंदर ब्यूटीफुल गर्ल थी 11 ईयर्स की, हैड कम टू स्टे विद हिम, वो आई थी उसके साथ रहने के लिए, किसके साथ, रामाराव के साथ। शी वॉज फ्रॉम ए बिग टाउन, वह एक बड़े कस्बे से थी। सो शी न्यू हाउ टू प्ले द वीणा एंड हारमोनियम, इसलिए वह जानती थी हारमोनियम और वीणा कैसे बजाए जाते हैं। शी ऑल्सो हैड ए स्वीट वॉइस, उसकी बहुत ही मीठी आवाज़ भी थी। हर पेरेंट्स हैड डाइड, उसके माता पिता दोनों मर चुके थे। एंड हर अंकल हैड ब्रोट हर होम, और उसके अंकल उसे अपने घर लेकर के आए थे। रंगा was just the boy for her and she the most suitable bride for him, रंगा उसके लिए उचित लड़का था और वह एक बहुत ही उचित दुल्हन थी उसके लिए। स्टूडेंट्स, till here we have discussed, I hope it is clear to you. Thank you.